ساحلی پٹی کے سب سے بڑے شہر میرپور ساکرو کے شہری مسلسل 3 دن سے بجلی سے محروم ہیں اور انہیں بجلی آنے کی امید بھی نہیں ہے۔ میڈیکل سٹورز میں ریفریجریٹر میں رکھی ادویات بھی خراب ہونے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں شاہد صدیقی سے۔ میرپور ساکرو اس ٹھٹا کی ساحلی پٹی کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن یہاں کے شہری گزشتہ 3 روز سے جو ہے مسلسل بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جو ہے دوچار ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کے ذریعے چلنے والی صنعتیں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں۔ میڈیکل اسٹور میں جو دوائیاں ہیں ان کو جو ہے خطرہ، ان کے جو ریفریجریٹرز ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ بجلی کے ذریعے جو پانی فراہمی ہے، آب اور نکاسی آب کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو اس وقت شہری ہے گزشتہ 3 دن سے سخت پریشانی سے دوچار ہیں۔ آگے بڑھے دیگر اہم خبریں شامل کریں۔ ملک میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ روز کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح بڑھ کر 4.5% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز کورونا سے 4 افراد انتقال کر گئے۔ جمعے کو ملک بھر میں کورونا کے 18,305 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 818 ٹیسٹ مثبت آئے۔ کورونا کے 126 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکومت سندھ نے صوبے میں کووڈ کی گائیڈ لائن پر عمل درآمد کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ احکامات میں 6 فٹ کا سماجی فاصلہ رکھنے اور ہاتھوں کو بار بار دھونے، سینیٹائز کرنے، ہاتھ ملانے اور رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کرنے کے احکامات شامل ہیں۔ کووڈ ایس او پیز میں کورونا ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ کراچی میں آج شام آندھی اور کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اتوار سے منگل کی دوپہر تک وقفے سے تیز بارش کا امکان بھی ہے۔ حکام نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے باوجود کراچی کے نالوں کی صفائی کا کام اب تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ٹھٹھا کی ساحلی پٹی اور کیٹی بندر سمیت مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون ہوائیں آج سے شدت کے ساتھ جنوب مشرقی سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں بادل آج برسنے کو تیار ہے، لیکن شہر کے مختلف نالوں کی صفائی کا کام مکمل نہیں کیا گیا۔ گجر نالے سے صورتحال سے اپڈیٹ کریں گے کاشف مشتاق۔ آج بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج سے کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم جو ہے وہ داخل ہوگا۔ تاہم اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شام گئے جو ہے بارش کا سسٹم جو ہے وہ کراچی میں برسے گا، اور اس حوالے سے مختلف نالوں کا جب ہم رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا نالوں کی صفائی کی گئی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے صورتحال کچھ بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آتی ہے۔ اس وقت ہم گجر نالے پر موجود ہیں اور گلبرگ ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے۔ میرے کیمرہ مین عدنان علی اگر آپ کو دکھائیں تو نالے کی صورتحال کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ مین نالا ہے کراچی کا یہ، اور مختلف اسپاٹ کا ہم نے دورہ کیا ہے اور دورہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اور یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس نالے کی اسی طرح کی کنڈیشن ہے اور صفائی کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ ہماری ٹریفک پولیس سے بھی بات ہوئی ہے اور دیگر پولیس حکام سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو بھی جو ہے وہ ہائی الرٹ کیا گیا اور ساتھ ساتھ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور کسی بھی حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک پولیس کو بھی جو متحرک کیا گیا ہے، اور مختلف اسپاٹ پر ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف اسپاٹ پر جو ہے وہ ٹریفک اہلکاروں کو جو ہے وہ جو تعینات کیا جائے گا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ جی مانسون شروع ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی کی اہم شاہراہوں اور عمارتوں پر لگے خطرناک بل بورڈز اور ہورڈنگز ہٹائے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد سے۔ مانسون میں بارشیں ہوں گی، تیز ہوائیں چلیں گی، اور ایسے میں شہر میں جا بجا لگے ہوئے بل بورڈز انسانی زندگیوں کے لیے خطرات پیدا کریں گے۔ اس وقت میں شارع فیصل پر موجود ہوں۔ 18 کلومیٹر کی یہ شارع، یہاں پر جگہ جگہ بل بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ شہری حکومتوں کی جانب سے جو اشتہاری کمپنیاں ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بل بورڈز ہٹا دیے جائیں، ان کو خطوط لکھے گئے ہیں۔ ڈی ایم سی ایسٹ کی جانب سے بھی خط لکھا گیا ہے کہ یہ بل بورڈز ہٹائے جائیں، لیکن
शहर की किसी शाहरा की आप बात करें, शाहरा नूर जहां, शाहरा पाकिस्तान, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, गुलशन के मुख्तलिफ इलाके, नीपा और जो कराची के दीगर इलाके हैं वहां पर ये बिलबोर्ड्स मौजूद हैं। 2 साल पहले मेट्रोपोल पर हमने देखा कि एक बिलबोर्ड गिरा जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। DMC साउथ के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। अगर ये बिलबोर्ड्स हटा दिए जाएं तो ना ही शहरी हुकूमतों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा और न ही किसी इंसान की जिंदगी खतरे से दोचार होगी। जी, SPCA हुकाम की जानिब से कराची में मखदूश इमारतों की लिस्ट जारी तो कर दी गई, मगर इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली इन इमारतों को ताहाल ना तो गिराया गया ना मकीनों से खाली कराया गया है। इन इमारतों की रिहायशी किस हाल में है और कहीं और क्यों मुंतकिल नहीं हो रहे, ये बताएंगे अब्दुल वली। जी, ईद कुर्बान की आमद है और शहर में छोटी बड़ी मवेशी मंडियों का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके बंस रोड में। यहाँ पर खूबसूरत छोटे बड़े जो है वो बकरे और दुम्बे जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि दीगर मंडियों के मुकाबले में यहाँ पर ये जो बकरे मौजूद हैं इस मंडी के बारे में वो क्या देखते हैं। दीगर मंडियों के मुकाबले में ये मंडी हमारे एक तो घर के करीब पड़ती है और ऊपर से ये घरों के पाले हुए होते हैं तो ये सस्ते हमें पड़ जाते हैं। वो जो है बहुत दूर पड़ते हैं और वहाँ पे एक पैसे ले जाना ये भी रिस्क है आजकल के जैसे हालात वगैरह चल रहे हैं। जी, आपने जो है वो यहाँ पर खरीदार की बात भी सुनी, उनका भी यही कहना है कि इस मंडी से हमें ये फायदा हासिल है कि हमें भारी रकम जेब में लेकर शहर से बाहर भी जाना नहीं पड़ता। वक्त के ज़िया के साथ साथ जो है वो हमें हमारा दीगर चीजें भी जो है वो बच जाती है और बआसानी अपने घर में बैठकर जो है वो हम जानवर हासिल कर लेते हैं। जी, अभी आपको बताएं रहीम यार खान में मोटरवे 5 पर जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार वैन ट्रेलर से टकरा गई है और हादसे में 2 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी हो गए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मलिक असलम से। मलिक असलम, अपडेट कीजिए। हाँ जी, ये वाकया जो रहीम खान का इलाका है जाहिर पीर इंटरचेंज इसके करीब ये हादसा पेश आया है। ये तेज रफ्तार वैन थी जो ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके बाद जो मौके पर 2 का जाँ बहक हो गए जबकि 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है, जिसे मकामी अस्पताल के बाद शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलिक असलम, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 21.32% हो गई है। जून में शहरों में महंगाई 6.19% और देहात में 6.57% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। एक माह में आलू की कीमत में 36.64% इजाफा, अंडों की कीमत में 19.98% और दाल मसूर की 17.42% बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में दाल चना 14.03%, चने 13.62%, गंदम 13.03%, घी 12.86%, टमाटर 9.03% और चावल 11.67% महंगे हुए। देहात में टमाटर 27.70%, आलू 25.85%, अंडे 19.96%, कुकिंग ऑयल 18.27% और घी 17.16% महंगा हुआ। चिकन 11.10%, आटा 4.01% और फल 3.54% सस्ते हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में शहरों में प्याज 124.30%, टमाटर 121.72%, घी 76.71%, दाल मसूर 74.32% और कुकिंग ऑयल 70.8% महंगा हुआ। शहरी इलाकों में एक साल में मसालों की कीमत 20.11%, दाल मूंग 18.46% और चीनी 11.28% कम हुई। देही इलाकों में एक साल के दौरान टमाटर 149.57%, कुकिंग ऑयल 88.28%, घी 86.34%, दाल मसूर 73.93% महंगी हुई। इसी अरसे में चने 65.36%, फल 40.93%, चिकन 33.62% महंगा हुआ। दाल मूंग 14.64%, मसाले 11.58, चीनी 10.3% सस्ती हुई। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ अशियाए जरूरत की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दाल, चावल, आटे समेत तमाम अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। तफसील बता रहे हैं अली नईम इस रिपोर्ट में।
हैदराबाद में महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। होलसेल मार्केट्स हों या रिटेलर्स, तमाम जगहों पर सब्जियों, आटा, दाल, चावल, दूध और गोश्त समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 140 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला दूध 160, 95 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आटा 100 रुपए और कुकिंग ऑयल की कीमतें 590 से 600 रुपए किलो तक हो गयी। इसी तरह सब्जियों, दालों, चावल समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी रोजाना ही की बुनियाद पर इजाफे ने शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है। तो हम घर वाले ही जान सकते हैं, एक खर्चा रोकते हैं तो फिर दूसरा खर्चा निकालते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना। गरीब आदमी जिंदगी ऐसे गुजारा समझो, सांस चल रही उसकी हिसाब महंगाई है, हर चीज महंगी है, किसी चीज में सस्ती नहीं है। घी देखो, चावल देखो, तेल देखो, ऑयल देखो, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर गया है, इस टाइम पिस गया बिल्कुल ही। बहुत महंगी चीजें हो चुकी है, सारी की सारी, कुछ भी सस्ता नहीं है। परेशान है आवाम के इस महंगाई के दौर में, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने वाली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुताल्लिका इदारों की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत और उसके इदारों को अमली और ठोस इकदाम उठाने होंगे। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज, हैदराबाद। कम से कम उजरत के हुकूमती नोटिफिकेशन और पारलूम्स मजदूरों के मुआवजे में सालाना इजाफे के लिए फैक्ट्री मालिकान की जानिब से फिलहाल अमल दरामद का ऐलान नहीं हुआ, जिस पर मजदूर सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। उजरतों में इजाफे का हुकूमती नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद फैक्ट्री मालकान की जानिब से अमल दरामद का ऐलान न होने से मजदूर और हुनरमंद बेचैनी और तशवीश का शिकार हैं। गवर्नमेंट ऐलान कर दिंदी आ, उत्ते अमल नहीं होंदा हैगा। ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਓ। कोई सहूलत सारे वास्ते नहीं है, ਅਸੀਂ पर्सनली किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। मजदूर तंजीमों ने उजरतों में इजाफे के लिए सरकारी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के घिराव का ऐलान किया है। टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता लाखों मेहनत कशों की उजरत में पहले इजाफा नहीं है, अब ऊपर से और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इस पर अमल दरामद के लिए 2 जुलाई को हम लेबर डिपार्टमेंट का घिराव करेंगे। अगर गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद न हुआ तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। फैसलाबाद के हुनरमंद और मजदूरों का मुतालबा है कि मौजूदा महंगाई का मुकाबला करने के लिए उजरतों में इजाफे के गजट नोटिफिकेशन पर फौरी अमल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। वजीर आला पंजाब के रन ऑफ इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का इत्तफाक हो गया है। हमजा शहबाज वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। रन ऑफ इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम वजीर आला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमती बेंचेस को भी अपोजिशन का एहतराम करना होगा। इस्लामाबाद से मरियम नवाज की ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ में इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में वजीर आला के इंतखाबी अमल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा 17 जुलाई को आवाम ने पंजाब में 20 नशिस्तों पर वोट देने हैं। ज़िमनी इलेक्शन तक सूबे को चलने से कैसे रोका जा सकता है? अवाम खुद फैसला करे तो जमहूरियत ज्यादा बेहतर चल सकती है। गवर्नर को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आईनी होगा। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदे ही सूबा चला सकते हैं। अदालत ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को तलब किया। दोनों सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक पर पेश हुए। हमजा शहबाज ने कहा कि कोई शख्स नागुजीर नहीं, मुल्क का निजाम चलना चाहिए, हमारे पास अब भी अक्सरियत है। चीफ जस्टिस ने कहा आइन खुद रन ऑफ इलेक्शन का ऑप्शन देता है, हाउस मुकम्मल होना जरूरी नहीं, जो मेंबर मौजूद हों उन्हीं पर इंतखाब हो सकता है। क्या आपका इरादा धांधली करने का है? हमजा शहबाज ने कहा साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा, कोई धांधली नहीं होगी। पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा इत्तेफाक राय हो गया है, एडवोकेट जनरल पंजाब से बात की है, हमजा शहबाज दोबारा इंतखाब तक वजीर आला रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया क्या इस बात पर भी इत्तफाक है कि इजलास असेंबली में होगा? परवेज इलाही ने कहा यकीन दहानी कराता हूँ कि असेंबली में तमाम मामलात बरादराना माहौल में होंगे। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है वो मुल्की इदारों का एहतराम करते हैं। उन्होंने हमजा शहबाज को कायम मुकाम वजीर आला के तौर पर 17 जुलाई तक कबूल किया है। ताहम ये भी कहा है कि आईजी पुलिस पंजाब, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी कानून पर अमल करे। हुकूमती उम्मीदवार जिन हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल नहीं होगा।
अदालत ने 22 जुलाई को रन ऑफ इलेक्शन का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल कराने का कह देते हैं। 3 माह का बहरान 3 सेशंस में हल कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी करेंगे। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? पीटीआई के वकील फैसल चौधरी और वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने अलग अलग अंदाज से फैसले की ताबीर कर दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद ऐवान पूरा होगा और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फैसले में हमजा शहबाज को डी नोटिफाई करने की कोई बात नहीं है। इख्तियारात कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन है जो उन्होंने किया हुआ था 30 मई का, वो आज क्वाश हो जाएगा और एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट कुछ कंडीशन जो है वो लगाई जाएंगी उनकी पावर के ऊपर। उनके लिए कोई वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो यूज करेंगे। ऑब्वियसली ही विल नॉट बी सीएम इलेक्टेड, वो नहीं है, और जो है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत वो काम करेंगे। डे टू डे अफेयर्स जैसे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 197 एम्पल पावर्स होती हैं टू मेक सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, 88 से लेकर अब तक मुख्तलिफ सूरत में सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा करती रही है। देखिए, पावर्स महदूद करने के हवाले से इन्होंने वहां पे बहस की, इनका आर्ग्यूमेंट नहीं माना गया। कहा गया कि आप पावर्स कर्टेल करें, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां बाई इलेक्शंस हैं वहां सीएम अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफर पे बैन है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफाइड कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसको अबाइड करना, जिस पर अमल दरामद करना, जिसकी पासदारी करना, वो तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द सीएम उन पर फर्ज है। कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हुए उसमें ये कहा गया कि इनको डी नोटिफाई करें, मगर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। हमारी कंटेंशन ये है कि इतनी बड़ी चेंज आ गई है, अब इसको नए सिरे से डिसाइड होना चाहिए। हमने रूल्स लॉ को देखा है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंटेंशन को तस्लीम करते हुए ये फैसला मौखर किया था, बाई इलेक्शन के रिजल्ट से मशरूत किया था। तो हम आईसीए में जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी कंटेंशन मानी जाएगी। 25 माइनस होने के बाद पार्टीज की स्ट्रेंथ में फर्क आया है। हम 177 पे गए हैं, वो 168 पे आए हैं, तो हमें 3 रिजर्व सीटें हमारा हक है। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तरजीही लिस्ट के मुताबिक पीटीआई के मुजवजा मेंबरान से डिक्लेरेशंस मांग लिए हैं। डिक्लेरेशंस इलेक्शन एक्ट की शेक 104 सब सेक्शन 6 के तहत मांगे गए। खवातीन नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर कोक गिल और सैमुअल याकूब को डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया गया है। अभी आपको बताएं, लाहौर में एबिट रोड पर सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, तशद्दुद करके मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया। अयाज अमीर निजी टीवी के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। सीनियर सहाफी का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना हुआ। हमले का मुकदमा अयाज अमीर के ड्राइवर की मुद्दत में 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। सीनियर सहाफी अयाज अमीर एबट रोड पर निजी टीवी के दफ्तर से निकले तो उनके पीछे आने वाली गाड़ी पर सवार नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी रोकी, उन्हें और उनके ड्राइवर इकबाल को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार हो गए। अयाज अमीर ने मीडिया को बताया कि उन पर 4 से 6 अफराद ने हमला किया। वजीर आला हमजा शहबाज ने अयाज अमीर हमले की मजम्मत करते हुए आईजी पुलिस को हिदायत की है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ और सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक समेत पुलिस के आला अफसरान ने भी अयाज अमीर से वाक़े की तफसीलात मालूम की। अताउल्लाह तारड़ ने अपने ट्वीट में कहा, जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफी तजियाकार अयाज अमीर पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की आला सतह की तहकीकात कराने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्जिमों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने अयाज अमीर से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि नामालूम हमलावरों को मालूम करने के लिए पंजाब हुकूमत को पूरा ताउन देंगे। हम तनकीद करने पर खुद तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं। उन्होंने कहा, ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वजीर कानून बैरिस्टर आसम नजीर तारड़ ने सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि सहाफी अयाज अमीर पर हमला आजादी सहाफत पर हमला है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। सहाफियों की आजादी के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने हमले को शर्मनाक और बुज़दिलाना करार दे दिया। उन्होंने हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE और MN ने सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर हमले और तशद्दुद की मजम्मत की है। एक बयान में PFUJ के सदर शहजादा जुल्फिकार और जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि अयाज अमीर जैसे सहाफी पर हमले ने आजादी सहाफत और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती दावों की कली खोल दी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स MN ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि अयाज अमीर पर हमला पाकिस्तान में सहाफियों को दरपेश संगीन हालात का मुंह बोलता सबूत है। CPNE ने भी अयाज अमीर पर हमले की मजम्मत की है। CPNE के सदर काजिम खान ने कहा है कि आमिराना सोच का मुकाबला करना ही दरअसल सहाफत है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं एंटी करप्शन हुक्काम ने फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में फरागोगी को 10 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट अलॉट करने के मामले में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साबिक चीफ राना यूसुफ और सेक्रेटरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान से 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात कर रही है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान राना यूसुफ और मकसूद अहमद पर फरागोगी और उनकी वालदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करने का इल्जाम है। मुल्जिमान ने कीमती इंडस्ट्रियल प्लॉट कोड़ियों के भाव अलॉट किया। फरागोगी ने जाली कंपनी बनाकर 60 करोड़ रुपए का प्लॉट सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करवाया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इंडस्ट्रियल प्लॉट हासिल करने के लिए कंपनी की वैल्यू 2 अरब होनी चाहिए थी। फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। हुकाम का कहना है फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। PCB विमेन सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन इस्माइल इकबाल ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली 20 वुमेन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। तूबा हसन, गुलफिरोजा और सदर शम्स को पहली मर्तबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, जबकि 8 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की दी गई है। एक कैटेगरी में बिस्मा मारूफ, निदा डार और आलिया रियाज शामिल हैं। अनम अमीन, डियाना बेग, फातिमा सना, निशरा संधू और उममा सुहेल B कैटेगरी का हिस्सा होंगी, जबकि आयशा नसीम, मुनीबा अली, जवेरिया खान, सिदरा अमीन और सिदरा नवाज को C कैटेगरी में रखा गया है। गुलाम फातिमा, गुलफिरोजा, इरम जावेद, कायनात इम्तियाज, सादिया इकबाल, सदफ शम्स और तूबा हसन को D कैटेगरी में शामिल किया गया है। वुमेन सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन इस्माइल इकबाल ने बताया कि अगस्त सितंबर के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से 5 मजीद खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत 5 मुल्कों के सफीरों ने सिफारती असनाद पेश की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को सिफारती असनाद पेश करने वालों में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड आर्मिन ब्लूम के अलावा तुर्की, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर्स, यूरोपियन यूनियन की सफीर, सूडान और भूटान के सफीर भी शामिल थे। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी एहतराम और बाहमी मफाद के उसूलों पर मबनी तामीरी और पायदार रवाबित खत्ते में अमन, तरक्की और सलामती के फरोग के लिए नागुज़ीर हैं। इस साल पाक अमेरिका सिफारती ताल्लुकात के कयाम की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 10 LNG कार्गोज दरामद करने के लिए नए टेंडर जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक ये टेंडर्स जुलाई, अगस्त और सितंबर के कार्गोज के लिए जारी किया गया है। जुलाई के लिए 2 अगस्त के लिए 5 कार्गोज के लिए बोलियां तलब की गई हैं, जबकि सितंबर के लिए 3 कार्गोज मंगवाने के लिए बोलियां तलब कर ली गई हैं। LNG कार्गोज के लिए बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 7 जुलाई है। एप्टमा के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सनत को गैस बंदिश पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे फैसलों से टेक्सटाइल सनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वज़ीर आज़म इसका नोटिस लेकर गैस बहाल कराएं।
गौहर एजाज ने खत में कहा कि सुई गैस कंपनी ने 1 हफ्ते के लिए गैस बंद कर दी है। 9 से 14 तक ईद की छुट्टियां हैं। गैस न मिलने से हमारे बरामदी ऑर्डर्स मनसूख हो सकते हैं। गैस न मिलने से हमारी प्रोडक्शन 50% कम रहेगी। $2 अरब की एक्सपोर्ट सनद बंद हो जाएगी। $1 अरब का पैदावारी नुकसान अलग से होगा। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हुए गैस बहाली के अहकाम जारी करें।